Hello and welcome to our discussion on research designs. Now in last lecture we talked about informal designs. We talked about before and after without control, after only with control, and then there was before and after with control. So in last lecture we talked about informal designs. This time we'll move on to our formal designs. In the formal designs we'll talk about CR design, CR is completely randomized design. Then we have RB design, that is randomized block. So we'll talk about completely randomized design, then we'll talk about randomized block design. Then we also have a Latin square design, LS. Latin square. And finally we'll talk about factorial designs. In factorial designs we'll talk about two types of those. One would be simple factorial design, complex factorial design. When I say simple factorial design, I mean two-factor factorial design. Two-factor and then when we talk of complex factorial design, instead of 2 it can have n number of factors. So we call it multi-factor factorial design. So this is what we are going to talk about in the formal designs, formal experimental research designs. Now, before we start with these, let us have a small recap of the three principles that each design should be checked upon. Those three principles were, if we put them over here, those three principles can be stated as principle of replication, then principle of randomization, and then there is principle of control. So whatever design we'll make, we'll check which all principles it covers. Now if you remember our previous lecture, we had before and after without control. Then we had after only with control. And then we had before and after with control. This was after only with control. So we had before and after without control, after only with control, before and after with control. These are the three informal experimental designs that we talked of
last time. Now, if we check what all principles were being followed, when we talk of before and after without control, as far as replication is concerned, none of these were exactly following a replication pattern. Principle of replication was not being followed by any of these. But yes, replication could be introduced by me by taking multiple samples. If I repeated my experiment multiple times, I can introduce replication. But as such, the design was not talking about principle of replication. So if you remember, we gave them a question mark, because the design itself does not talk of replication. The design is not such that replication is inbuilt into it. So we were giving it a question mark that we can introduce replication by repeating the experiment n number of times. But as such, the design is not giving me that. Design is not following the principle of replication. Then when we talked about randomization, then we saw that when we come down to randomization, exactly nobody, absolutely nobody follows principle of randomization also. And when we come down to control, we saw that these two had built-in control. Now these are three principles, and whenever you design for a research, it is expected that your research design should adhere to, should complete these three principles: principle of replication, randomization, and control. Replication brings in the consistency because results are checked again and again. Randomization keeps everything random so that whatever is happening, we can attribute it to chance. And control tries to remove extraneous variables, tries to remove the effect of extraneous variables. So all these three principles have been discussed in detail in previous lectures. It is just a recap what all designs were covering, what all concepts, what all principles. Now today we are taking our discussion onto formal experimental designs, formal experimental research designs. Now remember, these are experimental designs. Experimental designs are designs where we on purpose give a certain samples, give a certain section of population a particular treatment. We are giving a treatment and then we are experimenting what is the outcome of that treatment. So these are experimental designs. We will be giving the population some treatment. If you remember, in these previous cases also, we were giving a treatment. The treatment was training, long jump training. So I'll be introducing the treatment. Now, as we see in previous designs, which were informal experimental designs, only two ticks were there. There were 4 definite no's, and then there were 3 confusion areas which were not being addressed but can be addressed. They were not being addressed. उनका कोई सोल्यूशन वहां पे नहीं दिख रहा था, लेकिन हम उनका सोल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं. तो कुल मिला के देखा जाए तो जो इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन थी, इनमें से 2 ही इश्यूज एड्रेस हो रहे थे आउट ऑफ 9 पॉसिबल इश्यूज दैट शुड हैव बीन एड्रेस्ड. तो ये 2 ही चीजें आ रही थी कि एक तो आफ्टर ओनली विद कंट्रोल में कंट्रोल आ गया था, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल में कंट्रोल आ गया था, अदरवाइज कुछ भी उनमें नहीं आ रहा था. अब यहां पे इस एरिया के अंदर आकर के देखते हैं हाउ कैन दीज फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस गेट अस मोर टिक्स इन कवरिंग दीज प्रिंसिपल्स. टुडे विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डिजाइन, दैट इज कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, CR डिजाइन. तो इनको हटा देते हैं, विल टॉक अबाउट देम लेटर. फॉर नाउ विल टॉक अबाउट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. Completely randomized design के अंदर we can have 2 types of designs. 2 group simple randomized design,
and then there could be random replication design. तो ये हमारे पास पहली डिज़ाइन है, दैट इज कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन. इसके अंदर हम 2 ग्रुप सिंपल रैंडमाइज देख लेंगे, रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन भी देख लेंगे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, it is the most basic of the formal experimental designs, and you'll see that it almost resembles to what we have discussed in previous lecture. जहां पे हमने इनफॉर्मल की बात की थी, आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट वैसी ही कुछ डिजाइन हम वापस से तैयार कर रहे हैं. इफ आई सी व्हाट हैपेंस इन 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड डिजाइन, 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड डिजाइन, इसके अंदर क्या हो रहा है? यू हैव योर पॉपुलेशन, हालांकि हमने अभी सैंपलिंग की ज़्यादा बात नहीं की है तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, बट द आइडिया इज यू हैव योर पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन से यहाँ पे पेज थोड़ा कम पड़ेगा. आई वुड लाइक कि हम ये दोनों एक ही जगह लिख सकें. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव ऑल दिस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. We have make use of proper pen. Completely randomized design. In that we are talking right now about two group randomized design. फाइन. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर से अपना सैंपल निकाल लेते हैं. सैंपलिंग के मेथड्स क्या हो सकते हैं उनको भी हमने बात नहीं की है, विल टॉक इन लेक्चर्स टू कम, बट एक बेसिक आइडिया तो हमारे को पता है कि सैंपलिंग क्या होती है. तो व्हाट वी डू इज कि एक पॉपुलेशन है और उसके अंदर से हम एक रैंडम सैंपल निकाल लेते हैं. तो ये सैंपल जो आ रहा है बिल्कुल रैंडम सैंपलिंग से आ रहा है. देयर इज अ टेक्निक ऑफ रैंडम सैंपलिंग. जब हम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करते हैं. तो वी हैव अ कंप्लीटली रैंडम सैंपल. रैंडम सैंपल का क्या मतलब हुआ कि उस पॉपुलेशन में से ऐसा नहीं था मेरा कि मैं बॉयज से बात कर रहा हूँ, गर्ल्स से बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज से बात कर रहा हूँ, यंगस्टर से बात कर रहा हूँ, टीन एजर से बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. इट वॉज अ कंप्लीटली रैंडम सैंपल. इसका मतलब जो मेरे पास सैंपल आया वो कंप्लीटली हेट्रोजीनियस है. उसके अंदर ऐसा कुछ बायस नहीं है कि सिर्फ रूरल पॉपुलेशन का है या सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन का है या सिर्फ यंग पॉपुलेशन का है या सिर्फ ओल्ड पॉपुलेशन का है. तो कंप्लीटली रैंडम सैंपल इस पॉपुलेशन में से मैंने निकाल लिया. नेक्स्ट व्हाट आई डू इज इस रैंडम सैंपल को मैं 2 ग्रुप्स में बांट देता हूं. ग्रुप ए ग्रुप बी. सी यहां पे हो सकता है हमारे पास एक सिटी की 10 लाख की पॉपुलेशन है, 15 लाख की पॉपुलेशन है, 20 लाख की पॉपुलेशन है. उसमें से हमने यहां पे एक रैंडम सैंपल लिया. वो रैंडम सैंपल हो सकता है 500 जनों का हो, 1000 जनों का हो, 2000 जनों का हो. तो फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख मैंने क्या किया, 2000 जनों का एक रैंडम सैंपल अलग कर लिया. रैंडम सैंपल है इसलिए सब तरह के लोग होंगे, ओल्ड एज भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कॉलेज गोइंग भी होंगे, इलिटरेट्स भी होंगे, रूरल होगा. रूरल तो एग्जैक्टली नहीं है, चलो हम सिटी की पॉपुलेशन ले रहे हैं, मतलब पूरा सिटी का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गया. प्रॉपर इनसाइड सिटी होगा, बाहर की कॉलोनीज होंगी, बिल्डिंग्स वाले होंगे, फ्लैट्स वाले होंगे, बंगलोज वाले होंगे, कोठी वाले होंगे. तो हर तरह के लोग हमारे पास यहां पर आ गए. तो फ्रॉम दैट पॉपुलेशन आई हैव अ सैंपल ऑफ 2000, अ रैंडम सैंपल ऑफ 2000 रिस्पोंडेंट्स. अब उन 2000 में से भी मैंने क्या किया, रैंडमली 2 ग्रुप बना दिए. तो अगेन इन 2 ग्रुप्स के अंदर भी क्या हो रहा है कि इस पॉपुलेशन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जा रहा है. ऐसा नहीं है कि एक तरफ सिर्फ
बड़े बड़े मकानों वाले, बड़े बड़े महलों वाले लोग हैं, और एक तरफ सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। कंप्लीटली मिक्स्ड ये भी हमारे ग्रुप्स आ गए। तो व्हाट हैज हैपेंड कि एक रैंडम सैंपल निकला 10 लाख में से 2000 का, और उस 2000 को हमने क्या किया, 1000 के अंदर बांट दिया। सो दिस इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब इनको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट एक्स एंड ट्रीटमेंट वाई, और you can call it experiment group and control group। अब जितनी भी फॉर्मल डिजाइन्स हम पढ़ेंगे अभी, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड जितनी भी फॉर्मल डिजाइन्स पढ़ रहे हैं, मे इट बी CR डिजाइन, मे इट बी RB डिजाइन, LS डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, जितनी भी डिजाइन्स हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट्स लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दोनों अलग अलग ग्रुप्स को क्या करें, एक को ट्रीटमेंट ए दे दिया, एक को ट्रीटमेंट बी दे दिया, एक को वैक्सीन ए दे दी, एक को वैक्सीन बी दे दी, एक को मेडिसिन ए दे दी, एक को प्लेसिबो दे दिया। तो आप इन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। या फिर जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा है, पास्ट के अंदर देखा है कि एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, जिसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको कुछ नहीं किया जाता है। सो दैट आई कैन कंपेयर कि जब कुछ नहीं किया गया तो इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, और जब इनको एक ट्रीटमेंट दिया गया, दवाई दी गई, कोचिंग दी गई, तब इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो इफ यू आर, अगर एक ही फैक्टर को स्टडी करना है कि भाई इसको जो मैंने ट्रेनिंग दी थी लॉन्ग जंप की उसका क्या हुआ, तो वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप हो गया, और कंट्रोल ग्रुप हो गया जिसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी। दो मेडिसिन टेस्ट करनी है तो यू कुड हैव ट्रीटमेंट एक्स एंड ट्रीटमेंट वाई। तो आइडिया इज दो ग्रुप्स बन चुके हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट यू आर स्टडीइंग, या तो आप इसको एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल कर दीजिए कि भाई इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसको छेड़ूंगा नहीं। और अगर आपके पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दो ट्रीटमेंट्स हैं, तो ट्रीटमेंट एक्स एक जगह लगा दिया, ट्रीटमेंट वाई एक जगह लगा दिया। अब यहां से जो भी रीडिंग्स आएंगी यू कैन एनालाइज देम। ट्रीटमेंट एक्स की जो रीडिंग्स आएंगी, ट्रीटमेंट वाई की जो रीडिंग्स आएंगी, अगर ग्रुप ए के बच्चे ज़्यादा दूर तक कूद रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था, जो हमने इन पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो सक्सेसफुल रहा। अगर ग्रुप बी के बच्चे कम कूद रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। या लेट्स से आपने इनको दो दवाइयां दी थी, ट्रीटमेंट एक्स एंड ट्रीटमेंट वाई, तो अब ये लोग जो ठीक हो गए हैं, ये लोग जो ठीक नहीं हुए हैं, तो यू कैन से, या किसी ग्रुप में ज़्यादा हो गए हैं, किसी ग्रुप में कम ठीक हुए हैं, तो वी कैन से कि भाई ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव थी, ये मेडिसिन थोड़ी सी कम इफेक्टिव थी। फाइन। सो ये तो हुआ हमारा एक टू ग्रुप रेंडमाइज्ड डिजाइन। इसकी अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कौन सा ले लिया हमने, टू ग्रुप कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो रेंडमाइजेशन तो आ ही गया, कंप्लीटली रैंडम है ये सैंपल, कहीं पे भी कोई बायस नहीं है हमारा। तो इसकी बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे को रेंडमाइजेशन तो मिल गया। लेकिन यस, अगर आपने यहां पे दो ट्रीटमेंट्स लगा दिए, ट्रीटमेंट एक्स एंड ट्रीटमेंट वाई, तो हमारे को कंट्रोल थोड़ा सा मिला या नहीं मिला, वी आर नॉट श्योर। अगर एक ही ट्रीटमेंट था तो हमारे को एक कंट्रोल ग्रुप मिल गया और हमने उसके अंदर कंट्रोल लगा लिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने दोनों पे एक ट्रीटमेंट लगा दिया तो फिर हमारा इसमें के अंदर कंट्रोल नहीं आया। इसको अगेन मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों छोड़ा है कि डिपेंडिंग ऑन आप कितने ट्रीटमेंट स्टडी कर रहे हैं, इट कुड बी डिफरेंट। या फिर मैं यहां पे एक और ग्रुप भी बना देता, सपोज मेरे को दो ट्रीटमेंट्स चेक करने हैं, तो आई कुड हैव टेकन ट्रीटमेंट एक्स, ट्रीटमेंट वाई एंड अ कंट्रोल ग्रुप। तो अब ये चीजें जो है ये एग्जैक्टली इस डिजाइन के अंदर नहीं बताई गई है, इसलिए हमने यहां क्या डाल दिया है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि भाई कंट्रोल इसके अंदर है या नहीं, वी आर नॉट श्योर। इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर हिमसेल्फ कि हमारे को जो रिसर्च दी गई है वो ये दी गई है, ट्रीटमेंट एक्स एंड ट्रीटमेंट वाई। तो इफ वी आर मेकिंग यूज ऑफ ट्रीटमेंट एक्स एंड ट्रीटमेंट वाई, तब इसके अंदर कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं तीन ग्रुप कर देता हूं, ट्रीटमेंट एक्स, ट्रीटमेंट वाई एंड कंट्रोल, तो कंट्रोल आ गया। यस, मैं दो ट्रीटमेंट्स नहीं स्टडी कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट स्टडी कर रहा हूं, ट्रीटमेंट एक्स का एक्सपेरिमेंट, तो फिर ये कंट्रोल ग्रुप बन गया। तो आइडिया इज कि इसके अंदर कंट्रोल क्वेश्चन मार्क में जा रहा है कि ना तो वो एक्सप्लिसिटली इसके अंदर है, इस डिजाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन वी कैन इंट्रोड्यूस, जैसा यहां हो रहा था कि रेप्लिकेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ दीज डिजाइंस। मैं अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके रेप्लिकेशन ला सकता हूं। तो सेम इज ओवर हियर कि कंट्रोल के लिए आई एम नॉट श्योर कि कंट्रोल इसके अंदर है या नहीं है। एज फार एज रेप्लिकेशन इज कंसर्न, रेप्लिकेशन तो
बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार एक ग्रुप को एक ट्रीटमेंट दे दिया गया और एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स ले लिए गए। अगेन वही बात है कि अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर देंगे, आज इसको एक्सपेरिमेंट को किया, 3 दिन बाद फिर किया दूसरे ग्रुप के साथ, 5 दिन बाद फिर दूसरे ग्रुप के साथ किया, तो रेप्लिकेशन लाया जा सकता है, लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर इनबिल्ट नहीं है। तो अब हम बाय एंड लार्ज सिर्फ वही बातें करेंगे जो डिज़ाइन में बिल्ट है। आई अज्यूम अब अपने को ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया है कि जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इसका मतलब ये है कि इफ आई मॉडिफाई द डिज़ाइन तब मैं ये चीज़ ला सकता हूं। इफ आई मॉडिफाई दीज डिज़ाइंस तब मैं रेप्लिकेशन ला सकता हूं। अब ये जो फाइनल कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि नाउ वी आर एट एडवांस लेवल, तो वी शुड नो कि किस डिज़ाइन के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो नाउ आई कैन से कि नहीं, इसके अंदर इनबिल्ट रेप्लिकेशन तो नहीं है। मैं रेप्लिकेशन इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर इनबिल्ट रेप्लिकेशन नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी इसके अंदर इनबिल्ट कंट्रोल तो नहीं है। मैं कौन कौन से ग्रुप्स को क्या ट्रीटमेंट्स देता हूं, उस हिसाब से आई कैन इंट्रोड्यूस कंट्रोल, अदरवाइज इसके अंदर इनबिल्ट तो नहीं है। ये जो अल्टरेशन है ये तो मेरे लेवल पर हो रही है। आई एम मेकिंग दिस एडजस्टमेंट कि ठीक है एक फैक्टर ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट, या आई एम मेकिंग दिस एडजस्टमेंट कि 5 ट्रीटमेंट्स देने हैं, ABCDE ट्रीटमेंट दे दिए, छठा ग्रुप क्या कर दिया, कंट्रोल ग्रुप कर दिया। तो दैट इज माय अल्टरनेटिव। जो इस डिज़ाइन का है उसकी अगर हम बात करें तो इट डजंट हैव रेप्लिकेशन, इट डजंट हैव कंट्रोल, बट इट डज हैव रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन से तो शुरू हुई है, और इनफैक्ट इस पर डबल लेवल का रेंडमाइजेशन हुआ है। पहले भी रैंडम बने हुए थे, उसके बाद भी रैंडम ग्रुप्स हुए। तो रेंडमाइजेशन इज डेफिनेटली बिल्ट इनटू दिस। अब सेकंड जो हम ले रहे हैं वो क्या है हमारा, रेंडमाइज्ड रेप्लिकेशन डिजाइन। रेंडमाइज्ड डिजाइन। तो कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन के अंदर सबसे पहले तो थी हमारे पास 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड डिजाइन। एक टेक्निक तो ये हो गई, सेकंड हो गई रेंडमाइज्ड रेप्लिकेशन डिजाइन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, रेंडमाइज तो ये भी होगी, लेकिन इसके अंदर रेप्लिकेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। वो कैसे कर रहा हूं कि मैं अपनी कंप्लीट पॉपुलेशन को ही 2 में बांट दे रहा हूं। सबसे पहले तो नाउ व्हेन आई से 2 में बांट दिया, व्हेन आई से कि यहां पे 2 ट्रीटमेंट्स दे दिया, ऐसा नहीं है, देयर कैन बी 5 ट्रीटमेंट्स। आइडिया यही रहेगा कि पॉपुलेशन में से एक रैंडम सैंपल निकला और उन रैंडम सैंपल से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करके हमने 5 बना दिए ग्रुप्स और फिर उन पर ट्रीटमेंट्स दे दिए। तो व्हेन आई से 2 इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 2, इट कैन बी मल्टीपल। हाँ, यहां पे अब इसका नाम 2 ग्रुप है इसलिए फिर ये रहेगा 2 ग्रुप ही, वो मेरी ऑल्टरेशन हुई, ठीक है ना। अब यहां पे भी जो रैंडमाइज्ड रेप्लिकेशन डिजाइन का आइडिया है वो 2 का ही है, आप मल्टीपल बना सकते हैं। ऑल्टरेशंस आर एट द लेवल ऑफ रिसर्चर। हम यहां जो बात कर रहे हैं वो जो डिजाइन के अंदर सजेस्टेड है उसकी कर रहे हैं। तो यू हैव योर 2 पॉपुलेशंस, और अब हम इससे क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपल निकाल लेते हैं। रैंडम वन, और यहां से भी एक रैंडम सैंपल निकाल लेते हैं, विच विल बी रैंडम सैंपल 2। तो दोनों से हमने रैंडम सैंपल्स निकाल लिए। तो यहां तक तो यही बात है। हाँ, पहले क्या था, मेरे पास एक ही पॉपुलेशन चल रही थी, तो उस पॉपुलेशन मतलब पूरा एक सिटी था 20 लाख लोगों का, उस पूरे सिटी में से मैंने क्या कर दिया, एक सैंपल निकाल लिया 2000 का, और उस 2000 को क्या कर दिया, 1000 में बांट दिया। रैंडम, एवरीथिंग वाज रैंडम। कहीं मेरा कोई बायस नहीं था कि भाई इतने लड़कों से ही पूछना है, इतनी लड़कियों से ही पूछना है, इतने इस एज ग्रुप के, कुछ नहीं, रैंडम, कंप्लीटली रैंडम। सेम प्रिंसिपल यहां हो रहा है, पॉपुलेशन रैंडम सैंपल, पॉपुलेशन रैंडम सैंपल, बट अब ये चीज 2 बार रिपीट हो गई है। पॉपुलेशन रैंडम सैंपल, एक और पॉपुलेशन रैंडम सैंपल। हाँ, अब ये पॉपुलेशन कैसी हो सकती है कि हमने इस 20 लाख के सिटी को 2 के अंदर बांट दिया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 10 लाख का एक हो गया और 10 लाख का एक हो गया। या ये 2 अलग अलग सिटीज के अंदर किया जा सकता है। 20 लाख एक जगह की पॉपुलेशन है, किसी दूसरी जगह की पॉपुलेशन 5 लाख हो सकती है, हार्डली मैटर्स। पॉपुलेशन तो कितने की भी हो, हमारे को तो सैंपल से मतलब है।
10 लाख की पॉपुलेशन में, 20 लाख की पॉपुलेशन में से भी मैं 1000 लोग निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी 1000 लोग निकाल लेता हूँ 5 लाख की पॉपुलेशन में से। तो दैट इज अप टू अस। आइडिया इज कि एक पॉपुलेशन है और उससे रैंडम सैंपल आया, एक पॉपुलेशन है और उससे एक रैंडम सैंपल आया। नाउ यू कैन सी कि रैंडमाइजेशन भी हो रहा है और इनहेरेंटली बिल्ट इनटू दिस डिजाइन इज रेप्लिकेशन ऑल्सो, कि रेप्लिकेशन भी चल गया। और उसके बाद अब यहां से जो हमारे पास रैंडम सैंपल आया है उसमें हम क्या करते हैं, जो रैंडम सैंपल आया उसके भी मल्टीपल ग्रुप्स बना देते हैं। लेट अस हैव ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही लिख देते हैं तो ये सेम लगने लग जाएगा। वी हैव ग्रुप 1। व्हाट हैपेंड, पॉपुलेशन आई, उसमें से पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपल निकाला 2000 जनों का, और उस 2000 जनों के रैंडम सैंपल को फिर आगे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करके ग्रुप्स बना दी। यहां क्या हुआ, पॉपुलेशन आई, रैंडम सैंपल आया, 2 ग्रुप्स की जगह मैंने इस बार क्या बना डाले, 8 ग्रुप बना दिए। हाँ, अगेन यू कैन गो फॉर 20 ग्रुप्स, यू कैन गो फॉर 100 ग्रुप्स, डिपेंड करता है आप कितने ट्रीटमेंट्स लगाने चाहते हैं, डिपेंड करता है टू द लेवल ऑफ रेंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन दैट यू डिजायर। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बार समझने के लिए 8 लगा दिए। और ऐसा ही इधर से भी हो गया, इधर से भी हम क्या कर देते हैं, ग्रुप्स निकाल देते हैं। सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, 8th ग्रुप। नाउ यू सी, फर्स्ट पॉपुलेशन का एक सैंपल, रैंडम सैंपल, और उसके 8 ग्रुप्स बना दिए। इधर से भी एक रैंडम सैंपल और उसके 8 ग्रुप्स बना दिए। व्हाट हैज हैपेंड कि यहां से मैं कितने ले आया, जस्ट एन एग्जांपल, फर्स्ट ग्रुप में 1000, सेकंड ग्रुप में 1000। यहां भी तो यही हुआ था कि इस पॉपुलेशन में से मैंने कितने लोग निकाले थे। विल मेक यूज ऑफ सम अदर कलर टू अंडरस्टैंड। देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख, हमने से उसमें रैंडम सैंपल निकाल लिया 2000 का, ग्रुप ए कितने का कर दिया, 1000 का, ग्रुप बी कितने का कर दिया, 1000 का। इस तरह से हमारी लास्ट टाइम कैलकुलेशन चली थी। दिस टाइम मे बी हमने जब उस सिटी को डिवाइड किया तो कहीं पे वो क्राउडेड था, तो उस चक्कर में वो क्या बन गया, हमारे पास एक पॉपुलेशन तो बन गई 15 लाख की और एक पॉपुलेशन बन गई 5 लाख की। बट आई एम गोइंग अहेड विद माई ग्रुप्स ऑफ 1000 ईच। यहां से भी एक 1000 का ग्रुप निकल गया, तो हमारे पास क्या था, 1000 के 2 ग्रुप्स थे और उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट लगा दिया था। इस बार क्या हुआ, ये जो 1000 के ग्रुप्स आए हैं, इनके वापस 8 ग्रुप्स अलग बन गए। तो क्या हुआ, 125 कमिंग फ्रॉम ईच, हर जगह से कितने आए, 125 आए। सिमिलरली यहां से क्या हुआ, जब इन 1000 को डिवाइड किया तो यू अगेन गॉट 125 इन ईच। इसका मतलब अगर मैं G1 की बात करूं, ग्रुप 1, तो वो ग्रुप 1 अल्टीमेटली कितने का बन गया है, 250 जनों का, 125 कमिंग फ्रॉम वन सेक्शन, 125 कमिंग फ्रॉम अदर सेक्शन। ग्रुप 2 की बात करूं तो वो कितने का बन गया है, 250 का। इसी तरह से यू कैन सी कि ये सारे के सारे ग्रुप्स कितने के बन गए, 250 के। तो अब जो लास्ट टाइम हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, उनमें 1000 पे एक एक ट्रीटमेंट लगा दिया गया था। इस बार क्या हो रहा है कि हम 2 अलग अलग जगहों से पॉपुलेशन लेकर के आए हैं, उनके अलग अलग सैंपल्स हैं, और हमारे यहां ला करके भी हमने उनको 2 में नहीं बांटा है, रादर हमने 8 में बांटा है। और 8 में नहीं, रादर वी हैव स्प्लिट देम इनटू 16। जो पिछली बार 2 ग्रुप बन गए थे, 2000 के 2 ग्रुप बन गए थे, इस बार फ्रॉम दोज 2000 आई हैव मेड 16 डिफरेंट ग्रुप्स। 8 ये रहे, 8 ये रहे, और फिर उन 8 को मर्ज करके हमने क्या बना दिए, 16, 8 and 8 16। उन 16 को 2-2 को मर्ज करके हमने क्या बना दिए, 8 ग्रुप्स बना दिए। और फिर इनको जब हमने लिया तब हमने क्या डिसाइड किया कि ये जो है पहले 4, इनको हम दे देंगे ट्रीटमेंट X,
और ये जो बाद वाले 4 ग्रुप्स हैं इनको हम दे देंगे ट्रीटमेंट Y। या आप चाहें तो इसके अंदर फिर से वही बात हो सकती है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप बना दिया और इसको हमने कंट्रोल ग्रुप बना दिया। ये जो करता है ये जनरली इस डिजाइन में जो सजेस्टेड है वो ट्रीटमेंट X एंड ट्रीटमेंट Y की जगह क्या सजेस्टेड है, एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल। This becomes your experiment group and this becomes your control group. तो as far as design level is concerned, हम यहां क्या कह सकते हैं, randomized replication design। इसके अंदर replication तो आ ही गया, पहले भी replication था, उसके बाद इतना deep replication हो चुका है, बार बार हमने उस experiment को ट्राई किया है, 8 अलग अलग ग्रुप्स पे ट्राई किया है, तो रेप्लिकेशन तो आ गया। रेंडमाइजेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ रेंडमाइजेशन यहां था कि उसमें से हमने यहां पे कुछ लिया, पहला तो यही रेंडमाइजेशन हो गया कि पॉपुलेशन को किसी भी रैंडम क्राइटेरिया पे हमने बांट दिया, जोग्राफिकली बांट दिया होगा, एज वाइज बांट दिया, कैसे बांट दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। फिर उसमें से रैंडम सैंपल्स भी हमने ले लिया, आगे रैंडमली इनको ग्रुप्स में असाइन कर दिया, फिर किसी भी तरह से उनको ले लिया। अब रेप्लिकेशन भी आ गया, रेंडमाइजेशन भी आ गया एंड कंट्रोल भी आ गया। कंट्रोल क्यों कह रहा हूं मैं इस बार आ गया, क्योंकि जो डिजाइन इटसेल्फ सजेस्ट्स कि एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप रहेगा और एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा। अगेन मैं बार बार आपको याद दिलाऊं कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, हम डिजाइन को पढ़ रहे हैं। यस, ऑल्टरेशंस इन दोज डिजाइंस कैन डेफिनेटली यील्ड अस ऑल 3 टिक्स। इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करूं तो हो सकता है मैं 3 टिक ले आऊं, लेकिन वो मेरे लेवल के चेंजेस होंगे। एज फार एज स्टडिंग द डिजाइन इज कंसर्न, इसके अंदर क्या था, हमारे पास सिर्फ रेंडमाइजेशन आ रहा था, 2 ग्रुप रेंडमाइज डिजाइन में। जबकि जैसे ही हमने रेंडमाइज रेप्लिकेशन डिजाइन देखा तो वी आर एबल टू सी दैट तीनों ही चीजें हमारे पास आ गई, रेंडमाइजेशन आ गया, रेप्लिकेशन आ गया और कंट्रोल भी आ गया। सो दिस वाज कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन और CR डिजाइन। In the next lecture when we meet, we'll continue with our randomized block design, RB design. This was it for our today's lecture and we'll keep this table intact जिससे कि हमारा पूरा एनालिसिस एक जगह आ जाए और ये जो हमारा कंप्लीट सेटअप बन जाता है तो इसका एक स्नैपशॉट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाला हुआ है। तो अगर हम नोट्स लेने चाहें तो हमारे को ये कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पड़ा है, यू शुड गो अहेड एंड चेक इट आउट। अच्छा लगता है तो ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियोस भी वहाँ पर पोस्ट हो जाते हैं, ये सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी अब वहाँ पर डालने शुरू कर दिए, सो दैट यू गेट वन प्लेस फॉर ऑल द कंटेंट। एंड दिस वॉज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।